January 2022. And let me review what we have done in yesterday's class and then we will proceed. Okay, so we have defined dense set. So a subset A of xt is called dense if A closure is equal to X. For example, Q closure is equal to R. Then we have defined isometry. Isometry is a map between metric spaces such that the distance between the points and the distance between the images remains same. And now there is a definition, completion of a metric space. So a metric space M cap D cap is called completion of a metric space MD if one thing, M cap D cap should be a complete metric space. And the second thing is that there is an isometry phi from M to M cap such that phi M closure is equal to M cap. That is, the image of M is actually a dense subset of M cap. If this is the situation, then we say M cap D cap is a completion of metric space MD. And if M is complete, then M cap becomes the M. Then we have discussed the example of isometry. And then we have started discussing how to construct M cap D cap. If some metric space M is not complete, then how can we construct its completion, M cap D cap? So कैसे किया हमने ये कंस्ट्रक्शन? सबसे पहले हमने एक डिफाइन किया सेट M bar. This is the set of all Cauchy sequences in M. M में जितने Cauchy sequences हैं उनको कलेक्ट किया. उसके बाद हमने उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया. कैसे डिफाइन किया? दो Cauchy सीक्वेंस X एक लिया, X इज इक्वल टू XN एंड Y एक Cauchy सीक्वेंस लिया, Y इज इक्वल टू YN. हम कहेंगे दोनों Cauchy सीक्वेंस रिलेटेड हैं अगर लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी d of xn yn इज इक्वल टू 0, यानी दोनों के nth टर्म के बीच की दूरी 0 की तरफ जा रही है. Then we say that both the Cauchy sequences are related. Now, then we have shown that this relation is an equivalence relation. Since it is equivalence relation, then we we can partition. Yes. सर दो Cauchy सीक्वेंस की अगर जो डिस्टेंस है 0 की तरफ जा रहा है यानी दोनों का लिमिट सेम होगा ना उस केस में? See, because we don't know whether all the Cauchy sequences converges or not. If they converge, then of course their limit will be same. अच्छा. Now see this M bar. M bar was the set and this tilde was a relation on this set. So what we have done is that we have defined M cap to be the set of all equivalence classes of M bar. So M bar क्या था? M bar was the set of Cauchy sequences. Cauchy sequence के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया और फिर उस रिलेशन को डिफाइन करने के बाद क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन था तो हमने पूरे सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन कर दिया. Now on this set M cap we have defined a map D cap. और मैप कैसे डिफाइन की? D cap of xy class of x and class of y is equal to the limit of n is going towards infinity d of x and yn. ठीक है, जहां पे x क्या है? x जो है एक सीक्वेंस है, Cauchy सीक्वेंस है, nth टर्म xn है और y एक Cauchy सीक्वेंस है जिसका nth टर्म xn yn है. Now then we have shown that this map is a well defined map. We have shown that this map is a well defined map and now our claim is that M cap D cap is a metric space. So let us start now. So again let me write the date 1901 2022. Okay. Now we want to show that M cap D cap is a metric space. So okay, take two elements for x and y, where x and y are the Cauchy sequences and this is the class of those Cauchy sequences. Take two elements in M cap. Now by definition of D cap, what is D cap of xy? This is equal to limit n is going towards infinity d of x and yn. Am I correct? See the definition again. This is the definition. D cap of xy
class of x, class of y is equal to limit n is going towards infinitive d of x and yn. ठीक है? Now, because Yes, sir. D is a metric, this D is a metric, so its value will always be greater than equal to 0. And we are taking n is going towards infinitive. Even then, this value will always be greater than equal to 0. Is it okay? This is a sequence of non-negative terms, and we are taking the limit for it. So it will at most go to 0. So this value is always greater than equal to 0. The second thing is symmetricity. So you can see by the definition here, because D is here, D of x and yn or D of y and xn is same thing. So I can say that this is same as D of y and D of x, this of x, d cap of this. So this is happening. Now the thing is 0. So d cap xy, suppose this is 0, then what will happen? This implies limit n is going towards infinitive d of x and yn is equal to 0. But if this will happen, then what does it mean? It means x is related to y, and this implies the class of x is equal to the class of y. And if class of x is equal to class of y, then x is related to y, and x is related to y means this limit will be 0, and if this will happen, then this will be 0. So if and only if has been proved. Is it okay? Yes, sir. So perhaps this was the condition 1, 2, this was 3, and now there is a triangular inequality. So take 3 elements, x, y, z in M cap. Now what about distance between x and y? So let us start like this. I will take limit afterwards. So d of x and yn, where you may take x to be the sequence xn, y to be the sequence yn, and z to be the sequence zn. So distance between x and yn can be written as less than equal to distance between x and zn plus distance between zn and yn. Am I correct? Now take limit on both the sides. Limit n is going towards infinitive. D of x and yn is less than equal to limit n is going towards infinitive d of x and zn plus limit n is going towards infinitive d of zn yn. Am I correct? So this is d cap class of x and y. This is less than equal to d cap class of x and class of z plus d cap class of z and class of y. So proved. What we have proved, hence M cap D cap is a metric space. Agree? Yes, sir. Now what we have to show that this is the completion of M. To show. अब बचा क्या हमारे पास दिखाने के लिए? पहली चीज हमको ये दिखाना है कि एक मैप मिलेगी phi from M to M cap, which is isometry, plus phi of M closer will be M cap. ये एक चीज दिखानी है. दूसरी चीज ये दिखानी है हमको कि M cap D cap is complete metric space.
अभी हमने क्या किया, हमारे पास m था, m की मदद से हमने एक और मैट्रिक स्पेस बनाया जिसका नाम है m कैप, और अब हमको ये दिखाना है कि m इसके अंदर, m is isometric to a subset of m cap, m is isometric to a dense subset of m cap, ये दिखाना है हमको, ठीक है। तो चलिए पहले एक मैप डिफाइन करते हैं। डिफाइन मैप, डिफाइन a map. This is something we want to show, just we want to show that this will happen. ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, बट ये हमको दिखाना है। तो अब हम क्या करें, डिफाइन ए मैप phi from m to m cap s, phi of x is equal to the class of constant sequence x. कांस्टेंट सीक्वेंस भी तो कोसी सीक्वेंस होगा ना, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होगा, कोसी सीक्वेंस होगा। कांस्टेंट Yes, sir. सीक्वेंस कोसी और नॉट, यस सर। यस सर। तो ये कोसी सीक्वेंस हो गया। और इस कोसी सीक्वेंस को जब हमने लिया तो ये इसकी भी तो कोई क्लास होगी, तो हमने क्लास ऑफ कोसी सीक्वेंस ले लिया, ठीक। तो m का हर एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग जो कोसी सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, उसकी क्लास पे मैप हो गया। So first thing is to show that this is an isometry. So claim phi is an isometry. phi एक आइसोमेट्री है, तो देखते हैं phi आइसोमेट्री है कि नहीं है। तो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, d cap of phi x and phi y. So for xy in m, d cap of phi x and phi y means what? phi x क्या है, phi x क्लास है एक, जिसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस है और सारे टर्म x हैं, और यहाँ पे सारे टर्म क्या है, y है। डी कैप की डिफिनीशन देखिए क्या होती है, डी कैप की डिफिनीशन होती है लिमिट n is going towards infinitive and distance between the nth term of this sequence and nth term of this sequence। तो पहले सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो x आएगा और दूसरे का nth टर्म y आएगा। अब यहाँ पे कहीं n तो है नहीं, तो जब हम लिमिट लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, dxy मिलेगा। Is this step is okay? If not, then please ask. And if yes, then no problem. आगे चलें, ठीक है ये स्टेप। सर फाई जो आइसोमेट्री लिए हैं सर उसके बाद बता दीजिए सर। अच्छा देखो, डी कैप की डिफिनीशन देखो, इसके लिए सबसे पहले डी कैप की डिफिनीशन देखो। डी कैप कैसे डिफाइन किया गया, डी कैप अगर दो सीक्वेंस की क्लास पे लगाते हैं, एक्स और वाई सीक्वेंस है, तो ये होता है लिमिट एन इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, डिस्टेंस बिटवीन द nth टर्म ऑफ बोथ द सीक्वेंस, एक्स का और वाई के nth टर्म का डिफरेंस, nth टर्म की डिस्टेंस d ऑफ x एंड वाई एन। समझ रहे हो। अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे, यस सर यस। अब जब यहाँ पे हम यूज करेंगे तो फाई एक्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वो कांस्टेंट सीक्वेंस है x, तो सारे nth टर्म क्या हो गए, x यस सर। और हाँ y सर, का जो ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव है सारे nth टर्म y हो वाई गए, x और y के बीच की दूरी, और यहाँ पे n है नहीं, तो लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये dxy है। एक्स और वाई है। ठीक। Yes, and this identity shows that this is an isometry. So phi is an isometry. Phi is an isometry. सर n नहीं अब हम होने का क्या कारण ये नहीं सर, वहां पर x नहीं होने का कारण ये ना कि फाई एक्स जो है कोसिक कांस्टेंट सीक्वेंस है, हाँ, इसी कारण कांस्टेंट ना। सीक्वेंस, यस यस, ओके हर टर्म जो है x है उसका phi x में, ओके सर। ठीक। अब चलिए फिर से क्लेम करते हैं,
Next claim. Phi h closure, phi m closure is m cap. ठीक है, phi m का जो क्लोजर है वो m cap है। तो आपको पता है कि कैसे दिखाते हैं कि कोई सबसेट डेंस है। अगर कोई सबसेट A है और A क्लोजर X आ रहा है, तो अगर हम X में कोई पॉइंट लें तो वो क्या हो गया, A क्लोजर हो गया। और हमको पता है X इज इन A क्लोजर इफ एंड ओनली फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 B epsilon X intersection with A is not equal to 5. So this is the test for dense set. ये हम लोग प्रूव किए ना, X is in A closure if and only for all epsilon greater than 0 B epsilon X intersection A is not equal to 5. तो डेंस दिखाना है अगर हमको, तो हमको एक एलिमेंट लेना होगा M कैप में, और M कैप में एलिमेंट लेने के बाद हम उसके अराउंड एक बॉल बनाएंगे और उस बॉल में हमको M का एलिमेंट मिल जाना चाहिए, फाई M का एलिमेंट मिल जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, यस sir. सर। वो करके देखते हैं। प्रूफ ऑफ क्लेम, ये भी प्रूफ ऑफ क्लेम था। सो सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं। टेक x इज इक्वल टू xn, एंड x की जो क्लास है वो मान लेते हैं कि m कैप में है और फाई m में नहीं है, क्योंकि अगर एलिमेंट फाई m में हुआ तब तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ ही जाएगा। तो हम एलिमेंट फाई m से बाहर का ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? फाई m का अगर एलिमेंट हुआ, यानी a का ही एलिमेंट लेंगे, x a का एलिमेंट होगा, तो ये इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी आएगा ही, तो उसके लिए कुछ नहीं प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया कि वो एलिमेंट लिया जो कि फाई m से अलग है। ठीक है, यस सर। यस सर। xn क्या है? xn एक कोसी सीक्वेंस है। नाउ xn इज अ कोसी सीक्वेंस So given any epsilon greater than 0, कोसी सीक्वेंस की डिफिनेशन लगा रहे हैं, there exist n in n such that distance between xn and xm is less than epsilon for all n m greater than equal to n. ठीक है, ये क्या है? सिर्फ कोसी सीक्वेंस की डिफिनेशन है। xn एक कोसी सीक्वेंस होगा, तो definition से there given any epsilon greater than 0 there exists n in n such that distance between xn and xm is less than epsilon. Now take m to be n, then distance between xn and xn is less than epsilon for all n greater than equal to n. ये भी ठीक है? यस सर। ठीक। अब देखो एक कांस्टेंट सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, xn का कांस्टेंट सीक्वेंस, xn ये कांस्टेंट सीक्वेंस हमने लिया, xn का कांस्टेंट सीक्वेंस लिया। तो अगर इसको हम xn का कांस्टेंट सीक्वेंस बोल रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। चलिए, ये एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस की जो क्लास होगी वो कहां चली जाएगी? वो चली जाएगी फाई ऑफ m में। एग्रीड और नॉट? ये जो xn सीक्वेंस बना था उसी में x कैपिटल N जो टर्म था उसका एक कांस्टेंट सीक्वेंस हमने बना लिया। ठीक है, क्यों बनाया? क्योंकि ये x कैपिटल N जो था इसकी दूरी बाकी टर्म से एप्सिलॉन से कम थी। नाउ सी व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन x
and this constant sequence. By definition of d cap, it is equal to limit n is going towards infinitive, distance between the nth term of this sequence x. तो nth term में sequence का क्या है xn, और इसका nth term क्या है xn, यही हुआ, and limit n is going towards infinitive. तो ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं less than epsilon. यस सर. यस सर. और लिमिटिंग केस है तो हो सकता है लेस देन इक्वल टू हो जाए, इससे ज्यादा तो नहीं होगा. तो ये क्या हो गया, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई. सॉरी, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं हो गई. ये लेस देन एप्सिलॉन अगर हो गया तो आप चाहते तो इसको एप्सिलॉन बाई 2 कर सकते थे और फिर लेस देन एप्सिलॉन इसको लिख सकते थे. लेकिन यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर हम एक बॉल बनाएंगे एप्सिलॉन रेडियस की एक्स के अराउंड, तो इस बॉल में ये सीक्वेंस आ जाएगा. क्योंकि इसके Yes, बीच sir. की दूरी जो एप्सिलॉन से कम है. यस सर. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉल इंटरसेक्ट करेगी बी एप्सिलॉन एक्स इंटरसेक्शन विथ फाई एम is not equal to phi. Hence, phi m is a dense subset. So phi m closer is equal to m cap. तो ये भी काम हो गया हमारा. तो हमको क्या क्या काम करना था, हमारे पास कई काम थे. एक ये काम था कि हमको मैप चाहिए थी, हो गया. Phi m is a dense subset, that is also true. Now only thing that remains to show is that m cap d cap is a complete metric space. Is it okay? So now my claim is that m cap d cap. So, Yes. ये सीक्वेंस जो हमने डिफाइन किया है वो फाई एम में कैसे गया? Yes. Phi m में कांस्टेंट सीक्वेंसेस की क्लास है, और जो सीक्वेंस हमने डिफाइन किया वो कांस्टेंट सीक्वेंस था. ओह सॉरी. तो उसकी क्लास चली गई उसके अंदर. ठीक. सर एक चीज Yes. और पूछना है. हाँ बोलो सर यहाँ पे जो x का इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं सर, वो फाइम से अलग ले रहे हैं ना? हाँ, phi m से अलग ले रहे हैं, क्योंकि अगर phi तो m का फिर- एलिमेंट हुआ तब तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ ही जाएगा. हाँ, फिर प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं. हाँ, तब कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, यानी उसके पॉइंट्स के लिए तो ये बात सही है ही है, इसलिए हमने अलग ले लिया. ठीक है सर. सो m cap d cap इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस. अब हमको ये दिखाना रहेगा. तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कैसे दिखाते हैं, एक कोसी सीक्वेंस लेते हैं और हम दिखाएंगे कि वो कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा. ठीक, प्रूफ ऑफ क्लेम. सपोज xn star is a Cauchy sequence. In m cap. ठीक है, xn स्टार एक कोसी सीक्वेंस है m कैप में. तो ध्यान रखना, कोसी सीक्वेंस का हर टर्म क्या होगा, एक क्लास होगा. m कैप में क्लास होगा, m कैप का एक एलिमेंट होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इज इट ओके? सो हमने कोसी सीक्वेंस मान लिया. कोसी सीक्वेंस अगर हमने मान लिया तो कोसी सीक्वेंस की डिफिनीशन लगाते हैं. सो गिवन
epsilon greater than 0, there exists n in n such that the distance between the nth term, तो nth term इसका xn हमने मान लिया, xn स्टार, और mth term xm स्टार मान लिया, इसके बीच की दूरी, चलिए इसको एप्सिलॉन बाई 3 से हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, जहां पे ये एक्सन स्टार क्या है, एक्सन स्टार इस सीक्वेंस का nth टर्म है। ठीक, चलिए, लेकिन हमको पता है बट phi m is dense in m cap। phi m क्या है, डेंस है m cap। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक बॉल बनाएं, इफ आई मेक ए बॉल ऑफ रेडियस 1/n अराउंड xn स्टार, ठीक है, xn स्टार क्या है, xn स्टार m कैप का एक एलिमेंट है, ठीक है, xn स्टार क्या है, m कैप का एक एलिमेंट है, उसके अराउंड हमने 1/n रेडियस की बॉल बनाई। तो इस बॉल में phi m का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, ठीक ना, कोई भी बॉल एप्सिलॉन रेडियस की वो इंटरसेक्ट जरूर करेगी phi m को, यही तो हम लोग ने अभी प्रूफ किया। किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर हम बॉल बनाएंगे तो इसका इंटरसेक्शन phi m के साथ नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन m कि उसकी इमेज जो कि phi m में जाएगी वो इस बॉल के अंदर जाएगी, तो वो जो एलिमेंट है उसको हम नाम दे रहे हैं xn। देयर एग्जिस्ट xn इन m such that phi of xn belongs to this ball। Do you agree at this point or not? See what is phi of xn? phi of xn समझ रहे हैं क्या है? phi of xn का मतलब है एक कांस्टेंट सीक्वेंस की क्लास, और वो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है, xn xn xn, और इसकी क्लास। कैसे ये xn हमने पकड़ा? हम ये जानते हैं कि ये बॉल phi m को इंटरसेक्ट जरूर करेगी। We know that this ball will intersect phi m, so there will be some element of phi m, and we call that element of phi m to be phi of xn, because this number, this is dependent with n, तो n चेंज करेंगे तो चेंज होगा, इसलिए n के हिसाब से हमने इसको नाम दे दिया phi of xn। यहां क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। इसका क्या मतलब हो गया? This simply means that d cap of xn star and phi of xn, the distance between them is less than 1/n। ठीक है, तो इस हर कोसी सीक्वेंस के अराउंड, ये जो कोसी सीक्वेंस xn स्टार था उसके हर एक टर्म के अराउंड हमने, nth टर्म के अराउंड हमने 1/n रेडियस की बॉल बनाई। सो वी मेक ए बॉल ऑफ रेडियस 1/n at the nth term of this sequence xn star, and in that ball there exists an element of phi m, and we call that element of phi m to be phi of xn। So in this way for each n we got an element xn in capital M। तो हर 1n के लिए, स्मॉल n के लिए हमको एक एलिमेंट xn मिला कैपिटल M में, और इसको हम एक तो हमारे पास क्या हो गया, एक सीक्वेंस बन गया। सो वी गेट ए सीक्वेंस, a sequence
x1, x2, xn एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस को हम नाम दे देते हैं x, इस पूरे सीक्वेंस को जो कि xn है एक्चुअल में, ये इसको हम नाम दे देते हैं x, और ये कहाँ है, दिस इज अ सीक्वेंस इन m, m का एलिमेंट नहीं है, m का सीक्वेंस है, ठीक है, कैपिटल M का एक सीक्वेंस। नाउ आई वांट टू क्लेम दैट this sequence is a Cauchy sequence. My claim is that xn is a Cauchy sequence. Cauchy sequence. चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने क्या किया, हमको दिखाना है कि m cap, we want to show that m cap d cap is a complete metric space. Then what we have done is that we consider a Cauchy sequence in an m cap. ठीक है, Cauchy sequence की definition लगाया हमने, और ये एक आइडेंटिटी हमको मिली, d cap xn star xm star is less than epsilon by 3। उसके बाद फिर हमने कहा कि ठीक है ये Cauchy sequence है, because phi m is a dense in m cap, then we got xn in capital M such that the distance between xn star and phi of xn is less than 1 by n। और इस तरह से हमको एक सीक्वेंस मिल गया x1, x2, xn एंड सो ऑन इन m में एक सीक्वेंस मिल गया हमको इस तरह से, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, xn, हाँ बोलो। सर phi xn वो phi m के ही बराबर हो गया ना। phi xn का मतलब हो गया कि xn के कांस्टेंट सीक्वेंस की क्लास, यस सर। ठीक। अब हमारा क्लेम है कि ये जो xn हमने सीक्वेंस बनाया वो सीक्वेंस एक Cauchy सीक्वेंस होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इस क्लेम का प्रूफ कर लेते हैं। बहुत सारे क्लेम हो रहे हैं बीच बीच में, इस क्लेम का प्रूफ करते हैं, ठीक। फॉर सर यस, सर लेकिन जिस स्पेस से हम लोग ने xn उठाया वो तो ऑलरेडी, उसमें तो ऑलरेडी Cauchy सीक्वेंस ही है ना। नहीं, हमने जो xn उठाया वो तो m से उठाया, Cauchy सीक्वेंस m बार में है, ओ सॉरी। ठीक है ना। हम m को एम्बेड किए थे तो m से हमको मिला। अब इस सीक्वेंस को जब हम Cauchy दिखा देंगे तो ये सीक्वेंस m बार में चला जाएगा, ठीक सर। ठीक। सो फॉर nm ग्रेटर देन इक्वल टू n1, ऊपर वाला जो n1 लिया था हमने उससे बड़ा ले लेते हैं, ये वाला n1, ये जो n लिया था इससे बड़ा हम ले रहे हैं, तो यहाँ n कर लेते हैं। फॉर nm ग्रेटर देन इक्वल टू n, इस n से बड़ा लेने पर क्या होगा, अगर हमको इसको Cauchy दिखाना है तो हम ऐसा करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं xn एंड xm के बीच का डिस्टेंस, so that can be written as d cap of, because d is an isometry, d cap की डिफिनीशन ही लगा रहे हैं, this is equal to phi of xn, phi of xm लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि d cap की डिफिनीशन अगर लगाएंगे तो लिमिट आएगा, लिमिट n is going towards infinitive, और इसका nth टर्म xn ही है और इसका nth टर्म भी xm है, तो दोनों का डिफरेंस और लिमिट तो कुल मिला के d ही रह जाएगा, d of xn xm। इज इट ओके? यस सर। ठीक। Because d cap is a metric, so we can apply the triangular inequality and we can write it as d cap phi xn और phi xn एंड xn स्टार, इनके बीच में हमको रिलेशन पता है, इनकी डिस्टेंस पता है हमको, तो यहाँ पे हमने xn स्टार एंड phi ऑफ xm लिख दिया, बट वी डोंट नो एनी रिलेशन बिटवीन xn स्टार एंड phi ऑफ xm, तो इसको भी हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, सो वी कैन राइट इट एज phi ऑफ xm xn स्टार प्लस d ऑफ xn स्टार, और यहाँ पे हम कर देते हैं xm स्टार,
plus d of, so of course d cap is here, d cap of xm star and phi of xm. Agreed or not? Yes, sir. Now see, we know that this number, by the construction of xn, this number is less than what? 1 by n. देखिए ऊपर हम लोग ने किया है, ये नंबर क्या है? 1 by n से छोटा है. Here we have done it. xn star and phi of xn. So xn star and phi of xn is less than 1 by n. ये वाला नंबर एप्सिलॉन by 3 से छोटा है. By the definition of Cauchy sequence, see here, d cap of xn star and xm star is less than epsilon by 3. And then this number is less than 1 by m. Cauchy sequence दिखाने के लिए इस पूरे को हमको क्या करना है? लेस देन एप्सिलॉन में लाना है ना? So choose n1 in n such that n1 is greater than n, and by Archimedean property, one more thing we can fix here is that 1 by n1 is less than epsilon by 3. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा ना? कैसे होगा? 1 over epsilon by 3 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर होगा, तो कोई नेचुरल नंबर हमने इससे बड़ा लिया, और अगर ये नेचुरल नंबर n से बड़ा नहीं है तो हमने और इसको बड़ा कर दिया कि n से बड़ा हो जाए. ठीक है ना? तो n से भी बड़ा हो जाए और 1 upon epsilon by 3 से भी बड़ा नेचुरल नंबर, दैट इज n1. तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला नंबर होगा. If I take this number n1 like this, then what will happen is that then for all nm greater than equal to n1, 1 by n will be less than 1 by n1, and that will be less than epsilon by 3. And same situation is with 1 by m. So we can approximate these two numbers also. So it means we can write it as, let's say लिखते हैं इसको, for all nm greater than equal to n1, distance between xn and xm is less than 1 by n plus epsilon by 3 plus 1 by m, which is less than epsilon by 3 plus epsilon by 3 plus epsilon by 3, that is epsilon. Hence, this proves the claim. Hence, xn is a Cauchy sequence in M. इसका क्या मतलब हो गया? That is xn. Sir. Yes. सर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बाद तो नहीं समझ आया सर. वहां तो सीधा एन तो सब ले सकते हैं ना अपने मन से, एन और एम. हाँ. तो nm को आर्किमिडीज प्रॉपर्टी क्यों लग रहा है यहाँ पे? इसलिए लगाया है ताकि 1 by n जो है वो एप्सिलॉन by 3 से छोटा हो जाए. हमको इस नंबर को अप्रोक्सीमेट करना है ना. ये नंबर जो dxn और dxm है वो लेस देन है 1 by n प्लस एप्सिलॉन by 3 प्लस 1 by m से. अब अगर n और m काफी बड़ा ले लेंगे तो 1 by n एप्सिलॉन by 3 से छोटा हो जाएगा और 1 by m भी एप्सिलॉन by 3 से छोटा हो जाएगा. तो ये जो पूरा नंबर है dxn xm ये एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा. तो Cauchy सीक्वेंस दिखाने के लिए यही दिखाना होता है कि एक नंबर n1 ऐसा मिल जाए कि जिससे ऊपर जाने पर डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आ जाए. यस सर. इसलिए हमको ये लेना पड़ा. इज इट ओके? यस सर. सारी चीजों को अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना, देखो ठीक से आ जाएगा. ये तो हमने अपने हिसाब से लिखा, लेकिन इसको समझ के आप अपने लैंग्वेज में जरूर लिखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा.
ठीक, तो हमको ये कोसी सीक्वेंस मिल गया, इसको हम लोग x नाम दे रहे हैं, पहले भी इसको x नाम दिए थे। तो ये x क्या हो गया, x इज ए पॉइंट इन m बार। m बार वाज द सेट ऑफ ऑल कोसी सीक्वेंसेस इन m, और हमको ये पॉइंट इसमें मिल गया, एक x पॉइंट मिल गया। ठीक है, सो क्लियरली इसकी जो क्लास होगी वो कहां जाएगी, m कैप में चली जाएगी। द क्लास ऑफ x विल बिलोंग्स टू m कैप। तो m कैप का एक एलिमेंट मिल गया। Now I am going to do another claim, and my claim is that this sequence xn star will converge to this element in m cap. स्टार्ट कहां से किया था हमने, यहां से किया था कि xn star is a Cauchy sequence, and now I am going to show that this Cauchy sequence will converge to x. और ये दिखा देंगे तो m cap कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो अब बस इतना दिखाना रह गया है कि m कैप कंप्लीट है, यानी ये कोसी सीक्वेंस m के ऊपर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कैसे दिखाया जाए इसको? चलिए प्रूफ ऑफ क्लेम लिखते हैं। प्रूफ ऑफ क्लेम, लिखते हैं क्या दिखाना है। सो व्हाट वी वांट टू शो इज दैट टू शो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, डिस्टेंस बिटवीन xn स्टार, ओ देयर एग्जिस्ट n in n, ये भी तो लिखना होगा। There exists n in n such that the distance between xn star and x is less than epsilon for all n greater than equal to n. This is something that we want to show. ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये है क्या एक्चुअल में। डी कैप xn स्टार एंड ब्रैकेट x, दिस कैन बी रिटन एज डी कैप xn स्टार एंड phi of xn plus d cap phi of xn and x class of x। ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस अच्छा, अब देखो ये जो टर्म है डी कैप एक्सएन स्टार एंड फाई ऑफ एक्सएन, तो देखें ये पहले कहीं आया है। See here, d cap of xn star and phi of xn is always less than 1 by n. So यहाँ पे हम इसको सोच सकते हैं, this term is always less than 1 by n plus. Now what about this? This can be written as limit n is going towards infinitive and d of phi of xn का जो nth टर्म है वो n है। phi of xn का एक कांस्टेंट सीक्वेंस है और n हम यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हम अरे लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में n फिक्स है, तो हम लिमिट में ले रहे हैं m इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव, क्योंकि m एक वेरिएबल है इस हिस्से के लिए। बट इसका nth टर्म क्या xn ही है, और ये जो टर्म है x, इसका nth टर्म कौन है? इसका nth टर्म xn है। एग्रीड और नॉट? x क्या था? x जो सीक्वेंस था वो xn सीक्वेंस था, x xn सीक्वेंस था, तो इसका mth टर्म क्या हो गया? xm हो गया, एंड m इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। दिस इज द डेफिनेशन।
ठीक है, हमको ये दिखाना है कि ये पूरा टर्म जो है एप्सिलॉन से छोटा आएगा। सर क्लेम क्या किए थे एक बार बता दीजिएगा। हाँ, हमारा क्लेम था कि ये जो सीक्वेंस एक्शन स्टार है वो एक्स पे कन्वर्ज करेगा, और इस क्लेम को प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव दिस क्लेम वी हैव टू शो दैट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इनहेरेंट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्सन स्टार एंड एक्स विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to n. ठीक Is है it okay? ठीक है सर। So we need to approximate these two terms, that's all, so that everything become less than epsilon. Now see, xn is a Cauchy sequence, you know, xn is a Cauchy sequence. We just now proved that xn is a Cauchy sequence. Okay, so for a given epsilon greater than 0, since xn is a Cauchy sequence, so for given epsilon, for given epsilon greater than 0, there exists n in n such that, तो हम यहाँ पे n1 चूज कर चुके हैं, इसको n2 लिख दे रहे हैं, n2 such that, हालांकि उससे इससे कोई मतलब नहीं है, that does not depend, but okay, let me take n2 here. n2 such that the distance between xn and xm is less than epsilon by 2 कर लेते हैं, for all nm greater than equal to n2. ठीक है, is it okay? यस सर। Now अगर ये n जो है हम n2 से बड़ा ले रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन xn and xm will be less than epsilon by 2. It simply means that limit m is going towards infinitive, distance between xn and xm will also be less than or equal to epsilon by 2. That's all. कह सकते हैं ऐसा? अब हम m को बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा क्या एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, तो ओवरऑल लिमिट क्या होगी, एप्सिलॉन बाई 2 से कम ही आएगी। सो इसका मतलब इस हिस्से को हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया एप्सिलॉन बाई 2 से। नाउ चूज n3 in n such that 1 by epsilon by 3 epsilon by 2 is less than n3, or 1 by n3 is less than epsilon by 2. ठीक है, सो फॉर, अब इन दोनों से बड़ा हम ले लेते हैं, n2 और n3 से बड़ा एक टर्म ले लेते हैं, फॉर n4 टू बी द मैक्सिमम ऑफ n2 एंड n3, ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। फॉर ऑल n m greater than equal to n4, ठीक है, अगर n4 से बड़े हम ले लिया, यस, सो एक लेने से ही हो जाएगा। फॉर ऑल n greater than equal to n4, डिस्टेंस बिटवीन d cap of xn स्टार, ऊपर वाली आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं, एंड x, xn star and x, which is less than equal to
डी कैप xn स्टार पाई xn, ऊपर वाली आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं, आई एम जस्ट राइटिंग द आइडेंटिटी विच आई हैव रिटन अबव, एंड phi xn and this sequence x. Agreed? And we have shown that this is less than 1 by n plus limit n is going towards infinitive. Distance between n को हमने m कर दिया था क्योंकि mth टर्म ले लिया हमने यहाँ पे, xn and xn. Okay, and now we have approximated this thing. This thing is less than epsilon by 2, and this thing is also less than equal to epsilon by 2, but यहाँ less than है तो यहाँ पे epsilon by 2, and this is equal to epsilon. Hence क्या कह सकते हैं हम? Hence this sequence is converging to this term x. So every Cauchy sequence is convergent. This proves that m cap d cap is completion of md. So कोई मैट्रिक स्पेस दिया हो, हम उसका कंप्लीशन इस तरह से बना सकते हैं.